Hey guys, this is Dr. Nodi here, and today basically we are going to study the basic anatomy of skin. The first and foremost, I would like to address this thing that all of the things I'm actually teaching you here are actually taken from all of the reliable sources. I have used Pathoma, I have used Boards and Beyonds, and I always use bases for my own studies, and I'm also using some tips and tricks from first aid books. So actually I'm covering all of the points from Golgian, Kaplan, every MBBS book that majority actually uses. So feel free to use this information, and let's just dive into the video. Now, for example, in this video, I'm going to tell you just a little information about basic anatomy of skin, and we're going to cover three things here: the function, the skin structure, and epidermal structure. Now, this is going to be a very minor video, and you guys need to understand that every information shared here should be considered as your common sense from now onwards, because आप लोग अब medical students हैं, and for you guys, this is just a piece of common sense. Okay, now the very first information is that what are the functions of skin. The most important thing you guys need to understand that the skin, very important thing is that it is actually the largest organ of body. Now this is a factual thing, you do not have to dive into the concepts. Largest organ, remember this. Second important thing about the skin is that it actually helps as a first line defense. First line defense in what sense? In physical sense. You remember we all talk about adaptive immune system, innate immune system, the first line mechanism, the second line mechanism. Similarly, the first line defense system, which is physical, that doesn't allow excess of any kind of viral or bacterial infection into your body, वो आपकी skin है. And the third most thing जो बहुत important है और ये वीडियो बनाने से पहले मुझे भी नहीं पता थी, बहुत ignored point है, and that is it prevents dehydration. Now this is very important. Dehydration को याद कैसे रखना है? Example याद रखिए burns की. जब कभी भी कोई भी part of the body हमारा burn हो जाता है, जल जाता है, remember सबसे पहले जो management में चीज़ की जाती है वो उसकी dehydration को control किया जाता है. So body actually help us कि वो water को बाहर ना जाने दे. This is just the information, basic function हो गया, done with this. And now this is skin structure I'm gonna tell you. Skin structure कैसा है? Basically it's not a big thing. आपने बस इतना याद रखना है कि we have the most important 3 layers of our skin. That is it. पहली skin जो है वो epidermis है. कभी भी याद रखिएगा जो पहली layer होती है वो epi से start होती है, the outermost layer. This is the outermost layer. The second layer we are going to talk about the dermis, and the third layer is subcutis. इसको हम subcutaneous fat भी कहते हैं और hypodermis भी कहते हैं. Subcutaneous fat बहुत एक lay term है, बहुत एक आम term है, और मुझे नहीं लगता कि it works for me जिसको OCD kind है कि मैं इतनी आम चीज़ें याद रखूँ मेडिसिन में होने के बावजूद भी. तो we need to remember some higher words: subcutis and hypodermis. एपिडर्मिस का नाम जब भी कभी लाइफ में आए, यू हैव टू रिमेंबर जस्ट 2 थिंग्स. कुछ नहीं बोलना इसके बारे में. पहला पॉइंट ऑलवेज रिमेंबर, एपिडर्मिस की हैं 5 बहनें, 5 लेयर्स हैं. दैट इज इट. एपिडर्मिस है ए वास्क्यूलर. डू नॉट फॉरगेट दिस प्लीज़, फॉर गॉड सेक. है ये एक जिंदा लेयर, ये लिविंग लेयर है. इसकी 5 बहनें भी जिंदा हैं, बस एक थोड़ी सी ख़राब है, मैं बता दूँगी इनटू लेटर ऑन पिक्चर के साथ. ए वास्क्यूलर है, यहाँ कोई ब्लड वेसल नहीं है. वेरी एपिडर्मिस का लाइफ में कभी भी वर्ड आए, यू गाइज नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स विद यू. नाउ डर्मस के अगेन 2 पॉइंट्स हमने याद रखने हैं. पहला पॉइंट बेसिक याद रखना है कि हर चीज़ जो बेसिकली कहीं भी नहीं है वो डर्मिस में है. स्वेट ग्लैंड से लेकर, फॉलिकल से लेकर, ब्लड से लेकर, कनेक्टिव टिश्यू से लेकर, जो इन तीनों में नहीं है वो यहाँ है. दैट इज़ इट, डन. सबक्यूटिस की हमें लेयर याद रखनी है कि सबक्यूटिस में क्या है. सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि सबक्यूटिस या तो हाइपोडर्मिस में हमारे पास क्या है? कोलेस्ट्रॉल. दैट इज़ योर फैट. जितना भी पीला दिखेगा वो होगा ये चीज़. आई एम गोना शो यू द पिक्चर एंड यू गोना एक्चुअली लव इट. उसके बाद नाउ व्हाट वी आर गोना डू राइट नाउ, वी आर गोना डू वन थिंग.
ओके जी, तो अब आप बेसिकली देख रहे हैं हमारे पास द पिक्चर ऑफ द बेसिक स्किन। इसमें आप विद द लेबलिंग देख सकते हैं, यू हैव एपिडर्मिस, पेडर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस फैट। एपिडर्मिस की लेयर अगेन मैं रिवीजन के लिए बता दूं आपको, देखें एपिडर्मिस की जो लेयर है आपके पास, उसमें दो चीज़ें याद रखनी है। नोट दैट नो ब्लड वेसल इज गोइंग और एनी काइंड ऑफ ब्रांच इज गोइंग इनटू द एपिडर्मल लेयर। आपको याद रखना है इट्स एन एवास्कुलर लेयर, बट ऑफ कोर्स जो है ये जिंदा है, मुर्दा लेयर नहीं है, ये हमारे पास जिंदा लेयर है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ऑफ कोर्स केराटिनोसाइट से बनी हुई है। नाउ गोइंग टू द सेकंड लेयर डर्मिस में, दुनिया जहाँ के जितने भी गंद पित्ते हैं स्किन के, जितनी भी ओवरवेलमिंग चीज़ें स्किन की जो याद रखनी पड़ती हैं, वो सारी डर्मिस में है। देख लें, स्वेट ग्लैंड से लेकर ब्लड भी है, ब्लड वेसल्स भी हैं, ठीक है, एंड ब्लड वेसल्स होती ही डर्मिस में है। कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड्स, एवरीथिंग इज इन द डर्मिस। ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सबक्यूटेनियस फैट, जितना भी तरह मोटा। अब आप बेसिकली देख रहे हैं हमारे पास द पिक्चर ऑफ द बेसिक स्किन। इसमें आप विद द लेबलिंग देख सकते हैं, यू हैव एपिडर्मिस, पेडर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस फैट। Okay. Now basically we are gonna do the deep structures of the epidermis. अब epidermis की हैं 5 layers. एपिडर्मिस की 5 लेयर्स में सबसे पहले जो लेयर आएगी 5 बहनों में से, कैसे याद रखना है, वी हैव अ निमोनिक हियर, लेट्स गेट सन बर्न्ड, लेट्स गेट सन बर्न्ड। ओके, वी हैव कम हियर, तो ये है निमोनिक कम, लेट्स गेट सन बर्न्ड। कम से है हमारे पास कॉर्नियम, द अपर मोस्ट। L से है ल्यूसीडियम, द सेकेंड वन, प्लीज़ इग्नोर माई राइटिंग गाइज, मैं मेडिसिन में हूँ। S से है हमारे पास स्पाइनोसम, B से है, G से तो भूल गई मैं, गेट्स। B से है बिजेल। अगेन कम लेट, okay, so now we are done with this thing. Okay, come let's get sunburned. हमारे पास ये बेसिक लेयर्स हो गई। अब हम एक एक लेयर के बारे में सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखेंगे, एंड दीज पॉइंट्स आर वर्थ रिमेंबरिंग। और ये अपने अपने नाम के साथ हर कोई अपना अपना लेकर आया है। सपोज द वेरी फर्स्ट लेयर, जो बेसिक लेयर है हमारे पास, जो लोअर मोस्ट लेयर है, आई शो यू द पिक्चर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन अगेन रिपीट की जाएगी। जो लोअर लेयर है बेसिकली इसका नाम क्या है, बजेल, स्ट्रेटम बजेल कहते हैं इसको। और स्ट्रेटम बजेल, स्ट्रेटम सारी लेयर्स के लिए, और बजेल क्यों, बेस लेयर है। बेस लेयर के लिए सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे हैव स्टेम सेल्स, दैट्स इट। ये स्टेम सेल्स हैं, ऐसे सेल्स जिनसे सारे के सारे सेल्स प्रोलिफरेट होंगे, और आगे के भी जो भी सेल्स होंगे वो इसकी वजह से आएंगे। तो ऐसे होता है ना कि ये प्रोडक्शन हाउस है, एंड अपर साइड जो है वो ऊपर है। ऑलवेज रिमेंबर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एपिडर्मिस के बारे में 2 पॉइंट्स हमने याद रखे थे। मुझे एक पॉइंट अभी याद आया कि एपिडर्मिस की 5 लेयर्स में जितने भी सेल्स हैं उन सबको कौन सी लेयर कहते हैं, दे आर ऑल नोन एज स्क्वेमस सेल एपिथेलियम। याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर, स्क्वेमस सेल एपिथेलियम स्क्वेमस कब आता है, एनीवेयर जब टफ एंड रफ सिचुएशन आती है, इन्वायरमेंट को फेस करने की बात आ जाती है, तो स्क्वेमस हमेशा आ जाता है। तो बेसिकली स्किन हमारे पास ऑफ कोर्स रफ एंड टफ है। सेकेंड पॉइंट, इन सेल्स को हम लोग केराटिनोसाइट्स कह देते हैं। ब्लास्ट, साइट, इनका फ़र्क पता होना चाहिए, नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ टेल मी, आई टेल यू लेटर। स्टेम सेल्स होते हैं बेज़ेल में। द सेकेंड लेयर स्पाइनोसम। स्पाइनोसम क्यों, बिकॉज पिंक पिंक स्पाइन्स दिखेंगे, एंड आई शो यू द वीडियो राइट पिक्चर। स्पाइनोसम में क्यों दिखेंगे, बिकॉज ऑफ द डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स आर द स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्शन जिसकी वजह से हमारे पास स्पाइन्स बनेंगे। सारे के बीच में होते हैं बट मोस्टली स्पाइनोसम में मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास है, स्पाइनोसम के बाद है हमारे पास ग्रेन्युलोसम। ग्रेन्युलोसम क्यों है हमारे पास, ग्रेन्युलोसम हमारे पास एक बहुत प्रिटी सी डार्क पिंक कलर की लेयर है, ल्यूसिडम से बिल्कुल नीचे, और उसमें हमारे पास बड़ी अच्छी लेयर, बड़ी खूबसूरत लेयर है। क्यों, क्योंकि ये बहुत डार्क पिंक क्यों है, बिकॉज ऑफ द ग्रेन्यूल्स। और ग्रेन्यूल्स में क्या है, केरेटोहाइलिन है। दिस इज़ द लेयर जो कि केरेटोहाइलिन बनाती है और ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करती है कॉर्नियम में। केरेटोहाइलिन बनाकर ये क्यों ऊपर देती है, क्या करती है, ये विद द डिजीजेस मैं आपको बाद में बताऊंगी इन लेटर वीडियोस। ग्रेन्युलोसम, उसके ऊपर है ल्यूसीडियम। ल्यूसीडियम लेयर
This is, now listen to this, this is a layer of clear dead skin cells. Dead layer है ये लिविंग लेयर नहीं है, डेड है, और ये बहुत एक शाइनी सी क्लियर लेयर होती है. शाइनी सी लेयर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई सोल, पाम सॉरी, एंड सोल मेरे पास मेरे पैरों के नीचे, राइट फुट में, वहाँ की स्किन देखिएगा बहुत शाइन करती है, बिकॉज यहाँ ल्यूसिडियम जो है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, अच्छी खासी थिक होती है. देन यू हैव योर ल्यूसिडियम एंड देन यू हैव योर कॉर्नियम. कॉर्नियम सबसे अपर लेयर है, और सी से कॉर्नियम, सी से कैरेटिन, सी से कॉर्नियम, सी से कैरेटिन. कॉर्नियम लेयर में होता है कैरेटिन. कैरेटिन फिलामेंट्स होती हैं सारे सेल्स में. पहला पॉइंट कॉर्नियम का. सेकेंड पॉइंट कॉर्नियम का, दिस इज़ द लेयर जहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता. यस, ए न्यूक्लिएटेड होते हैं. जब हमारे पास किसी भी वीडियो में हमारे पास जो है वो आपको पता चलेगा आगे जाकर कि न्यूक्लियस दिखेगा हिस्टोपैथोलॉजी में हमें, तो फिर हमारी पैथोलॉजिकल फाइंडिंग होगी. अपर लेयर कॉर्नियम में देयर आर नो न्यूक्लियस, ए न्यूक्लिएटेड है, क्योंकि कैरेटिन इतना आ जाता है कि न्यूक्लियस को फिर डीजनरेट होना पड़ता है. तो रिमेंबर, द सेल्स गो फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड एंड दे लूज देयर न्यूक्लियस, दे फिल इन द कैरेटिन. दिस इज होल प्रोसेस एंड दीज आर हेल्पिंग देम. 5 लेयर्स बड़े अच्छे से बन गई, राइट? नाउ आई एम डन एंड आई एम गोना शो यू द पिक्चर. जस्ट लेट्स सी दैट. Okay guys, you can see from here that this is actually a histological picture, and above the dermis ये पूरी अच्छी स्टेन है. हमें देखना है जो लोएस्ट लेयर है बेजेल है. बेजेल मतलब स्टेम सेल्स. उसके ऊपर जो लेयर है वो स्पाइनोसम की है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम. वाई? बिकॉज डेस्मोसोम्स की वजह से ये पिंक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं. दे आर एक्चुअली द जंक्शंस बिटवीन दी सेल्स. ऊपर की लेयर जो बहुत प्रिटी है, मैंने कहा था, वो ग्रेन्युलोजम है. ग्रेन्युलोजम के बाद हमारे ना बेसिकली ल्यूसिडियम के ऊपर ये ल्यूसिडियम है, फिर उसके ऊपर कॉर्नियम की लेयर है. जो कैटनोहाइलिन के हमारे पास ग्रेन्यूल्स बन रहे हैं वो स्पाइनोसम में बन रहे हैं. एंड यू कैन सी कॉर्नियम में ये पिंक कलर क्यों आ रहा है, बिकॉज कैटन फिलामेंट्स बन रही हैं जो उसे रफ और टफ बना रही हैं. एंड यू कैन सी दैट्स पिंकिश कलर एंड दे आर नो न्यूक्लियस, विच इज़ दी नॉन पैथोलॉजिकल